Hello students, how are you all? Today the topic is chemical synapse. As we have studied in the previous topic that we have two types of synapse. What is synapse? Synapse is actually the communicating point, or it is the junction between the two neurons, or it is the communication of two membranes of a neuron, right? We have million of neurons in the body, right? And we have trillion and trillions of synapses in the brain, right? In this topic we will study the chemical synapse, and as we have studied before that there are two types of synapse: electrical synapse and chemical synapse. Now, what is the difference between the two? In electrical synapse, there is a gap of just 0.2 nanometer, but in this case, we have a gap which is 20 nanometer, and that gap is called synaptic cleft. When the one neuron communicates with the other neuron and there is a gap of 20 nanometer, it means that it is the chemical synapse and the neurotransmitters which are involved in the transmission of impulses from one neuron to other, or the transmission of action potential from one to other. That is called the chemical synapse, right? The synapse is a term which is introduced by a British physiologist, that is Charles Sherrington. He introduced this term, and the term actually means to join or the junction between the two neurons, right? Today we will study in a detail that what is chemical synapse. Now as you know that कि आपके पास हमने स्टडी किया था कि जब स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज जो है वो मोटर न्यूरॉन से ट्रेवल हो के मोटर न्यूरॉन की एंड प्लेट तक जाएगा या एक्सॉन टर्मिनल तक जाएगा, तो आपके पास इस न्यूरॉन में कौन सी टाइप ऑफ चेंजेस आएंगी, ठीक है? सो हम कह सकते हैं कि जब ये न्यूरॉन जो है इसकी सेल बॉडी से एक्सॉन या एक्सोप्लाज्म से होते हुए इंफॉर्मेशन जब ट्रेवल करेगी और एंड तक आएगी, यानी एंड कौन से एंड तक, यानी आपके पास न्यूरॉन के नॉब तक आएगी. इसको हम नॉब कहते हैं ना, ठीक है? आपने बहुत डिटेल में स्टडी किया था न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कि वी हैव सेल बॉडी, we have axon with exoplasm membrane, and then we have the neuron terminal, and these terminals have button like structures which are called the neuron knob like structure, button like structure, bulbous structure, bulb like structure, right? यहाँ इस डायग्राम में क्या शो किया गया है कि we have the spinal cord. From the spinal cord the motor neurons are the neurons which are the part of peripheral nervous system, और यहाँ मैंने हाईलाइट करके दिखाया है आपके न्यूरॉन की टर्मिनल एंडिंग्स, राइट? अब हमने बेसिक टॉपिक केमिकल साइनैप्स है. व्हेन the action potential is traveling along the length of the neuron and it comes along the neuron terminal, then what happens to this terminal, ठीक है? अब यहाँ ये मेम्ब्रेन जो है इसको हम कहेंगे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन. दिस इज द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन. प्री साइनेप्टिक, पोस्ट साइनेप्टिक, राइट? अच्छा, जब कभी आपके पास एक्शन पोटेंशियल या वेव ऑफ डीपोलराइजेशन ट्रेवल होगी अलोंग द लेंथ और आपके पास नॉब तक आएगी, तो कौन सी चेंजेस आपके न्यूरॉन में आएंगी चेंजेस, राइट? सो हमने देखा कि जब आपके पास एक्शन पोटेंशियल या वेव ऑफ डीपोलराइजेशन आई
तो हमारे पास यहाँ पर टर्मिनल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? वेसिकल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? वेसिकल्स। अब आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाएगा कि ये वेसिकल्स जो हैं ये पहले एम्प्टी होते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये आप देख रहे हैं सर्कल्स, ये सर्कल्स क्या होते हैं? इनको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, राइट। वी हैव 10,000 molecules of neurotransmitters, 10,000 molecules of neurotransmitter in each vesicle. First of all, these vesicles are empty. ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ये है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते कहाँ हैं? ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं आपके पास सेल बॉडी में बनते हैं, ठीक है। सेल बॉडी में बनेंगे, यहाँ पर सेल बॉडी में बनेंगे, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि आपके पास सेल में क्या है? डीएनए, डीएनए में जीन्स, जीन्स जो हैं वो ट्रांसक्राइब होंगी और कन्वर्ट होंगी मैसेंजर आरएनए में, और मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट करेगा इसको प्रोटीन में। तो वी आर सेइंग कि आपके पास ये जो वेसिकल्स हैं ये कहाँ बनेंगे? सेल बॉडी में बनेंगे। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स कहाँ बनेंगे? न्यूरोट्रांसमीटर्स आपके पास यहाँ से आएगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से कोलिन, और यहाँ से आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एसिटाइल एसीटेट, एसिटाइल को एंजाइम ए, ये दोनों जब मिलेंगे तो आपके पास क्या बनेगा? एसिटाइल कोलिन। So if there is a question in MCQ that where the vesicles are synthesized, the vesicles are synthesized in the cell body. Where the neurotransmitters are made, actually we have choline in the extracellular fluid. From where this choline came, actually जब हम कोई फूड लेते हैं उसमें कोलिन की अमाउंट होती है, तो यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम से एब्जॉर्प्शन होगी सर्कुलेशन में, और सर्कुलेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में लेकर आएगी कोलिन, एंड वी हैव द चैनल्स इन द न्यूरॉन मेम्ब्रेन। दीज आर द चैनल्स विच विल ये क्या करेंगे? कोलिन को इनर साइड पे पुश करेंगे या पंप करेंगे। तो कोलिन इनसाइड द न्यूरॉन आएगा, टर्मिनल आएगा कोलिन, और हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रेजेंट होगा उसमें प्रेजेंट होगी एसिटाइल को ए, तो इन दोनों के मिलने से हमें क्या मिलेगा? एसिटाइल कोलिन। अब ये एसिटाइल कोलिन जो है इसकी प्रिपरेशन में एसिटाइल कोलिन ट्रांसफरेज एक एंजाइम है जो ये एसिटाइल कोलिन बनाने में मदद करेगा। अब जैसे कि हमने रेस्पिरेशन में भी पढ़ा था, विदाउट इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम ये काम हो सकता था, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम ये काम बहुत या ये प्रोसेस बहुत स्लो होगा। दैट इज़ वाई एसिटाइल कोलिन ट्रांसफरेज इज एन एंजाइम विच विल मेक एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर। सो जब आपके पास वेसिकल्स सेल बॉडी में बनेंगे और यहाँ ट्रांसफ़र होंगे तो वो एम्प्टी वेसिकल्स जो हैं वो फिल्ड कर दिए जाएंगे, किससे? न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन से। अब यहाँ पर आ जाएं, ये मैंने थोड़ा सा इनलार्ज व्यू बनाया है आपके वेसिकल का और न्यूरोट्रांसमीटर का। ये वेसिकल क्या है? ये वेसिकल सेल बॉडी में बन रहा था, और ये क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। ये वेसिकल पहले एम्प्टी होगा। न्यूरोट्रांसमीटर जो है एक चैनल होगी प्रोटीन जो इसको थ्रो करेगी विद इन इनसाइड दिस वेसिकल, राइट। आपकी बुक के अकॉर्डिंग तो इस तरह की डिटेल नहीं दी गई, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी डिटेल मालूम करनी है कि ये एसिटाइल कोलिन और वेसिकल्स कहाँ से आए और ये सिंथेसाइज कहाँ होते हैं, प्रोड्यूस कहाँ होते हैं, तो आपके पास इसका आंसर होना चाहिए, राइट। नाउ हम बेसिक टॉपिक पे आ जाते हैं कि जब आपके पास ये एक्शन पोटेंशियल जो है ये ट्रेवल होगी वेव ऑफ डीपोलराइजेशन, तो यहाँ पर कौन से चैनल्स होते हैं? सोडियम चैनल्स। जैसे ही डीपोलराइजेशन की वेव आएगी ये चैनल्स ओपन हो जाएंगे, सोडियम अंदर ट्रिकल करेगा। जैसे ही सोडियम ट्रिकल करेगा तो यहाँ मेम्ब्रेन के ऊपर कैल्शियम चैनल्स हैं जो कि क्या हैं? डीपोलराइजेशन सेंसिटिव चैनल्स ओपन हो जाएंगे, कैल्शियम अंदर ट्रिकल करेगी। जैसे ही कैल्शियम अंदर ट्रिकल करेगी तो आपके पास ये जो वेसिकल हैं इनकी मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स होती हैं।
जिनको हम कहते हैं कि ये साइनेप्टोब्रेविन प्रोटीन है, साइनेप्टोब्रेविन प्रोटीन। ये साइनेप्टोब्रेविन प्रोटीन जो है, जैसे ही डिपोलराइजेशन वेव आएगी और कैल्शियम अंदर ट्रिकल करेगा तो ये आपके पास न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पे प्लेस्ड प्रोटीन के साथ क्या कर लेगा, एक प्रोडक्ट बना देगा, दोनों मिल जाएंगे। इसको हम कहते हैं कि दिस इज अ डॉकिंग प्रोटीन, दे मीट विद ईच अदर व्हेन द साइनेप्टोब्रेविन of neurotransmitter, it combines with syntaxin. Syntaxin is the protein which is present in the membrane of the neuron terminal या न्यूरॉन हम कह सकते हैं synaptic knob. This protein and the synaptobrevin of the neurotransmitter when they combine, जैसे ही ये डॉकिंग प्रोटीन्स जो हैं वो मिलती हैं तो आपके पास यहाँ पर ये मेम्ब्रेन जो है वो क्या बना लेती है, एक एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और आपके पास यहाँ जो न्यूरोट्रांसमीटर्स इसके अंदर स्टोरेज इसकी हुई थी, ये यहाँ से रिलीज़ होके और न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज़ होके आपके न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है जो कि एक्सोसाइटोज्ड हो गई थी, ठीक है, जैसे ही डिपोलराइजेशन के सिग्नल्स आए और ये क्या हो गई, एक्सोसाइटोज्ड का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही एक्सोसाइटोसिस होगी, मेम्ब्रेन इनवर्ड मूव करेगी तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये न्यूरोट्रांसमीटर जिसको मैंने स्टार से शो किया गया है, ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये बाहर किधर आ जाएगा, साइनेप्टिक क्लिफ्ट या गैप में आ जाएगा, आउटर साइड मूव कर लेगा, राइट, ये न्यूरोट्रांसमीटर। तो अगर हम दोबारा से इसको रिकॉल करें या रिवाइज करें, वी हैव 3 स्टेप्स। नंबर 1, एक्शन पोटेंशियल, वेव ऑफ डिपोलराइजेशन। नंबर 2, channels, opening of sodium channels. Then we have the opening of calcium channels, which are the depolarization sensitive channels. And we can also say that the 4th step is exocytosis. And the basic step is कि आपके पास डॉकिंग प्रोटीन्स क्या करेंगी, जैसे ही डॉकिंग प्रोटीन्स जो हैं वो बाइंड होंगी, एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगी, बाइंड होंगी, तो क्या हो जाएगा, आपके पास मेम्ब्रेन जो है वो एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस करेगी और आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो साइनेप्टिक क्लिफ्ट या गैप में आ जाएगा डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। The molecules will move from higher concentration towards the lower through a process called diffusion, right?